Yes, good afternoon to dear students. Today I will discuss about the introduction about air-extended cycle, basic terms, derivation of the Carnot and the Otto cycle. This is the part of Unit 4 and the subject name is the Unit Thermodynamics. Going to the outline. This is the outline of the today lectures, a review of the Carnot cycle, reversible engine, Carnot cycle, review the ideal gas law, review the thermodynamic process, review the properties of air, then move to the air-extended assumptions, then move to the terminology for the reciprocating devices and the Otto cycle introduction, derivation and the numerical on it. This is the content of the Carnot cycle already discussed in the morning class. Reversible engine efficiency derivation already discussed in the morning class. Review the ideal gas law, that is the properties and the equation of gas which is deriving PV is equal to RT if the mass is not presented, PV is equal to MRT when the mass is considered. This is the change of internal energy and the change of enthalpy for the ideal gas can be expressed in this formulas. And the delta U can be used in the case of constant volume process. Delta H can be used. You can in the case of constant pressure process. The review of the thermodynamic process, there are the number of thermodynamic process such as the isochoric, constant volume already discussed, isobaric, constant pressure, isothermal, constant temperature, polytropic, there is a no is the type of the descriptions because of the it is depending on the polytropic index values, isentropic that is a reversible adiabatic process or the called constant entropy process in which the entropy remains the constant before and after the process, that is called as S1 is equal to S2. This is the properties of air. Capital R 0.2871 kilojoule per kg per degree Kelvin. CV 1.005 kilojoule per kg per degree Kelvin. CV that is the 0.718 kilojoule per kg per degree Kelvin, and K which is also called a gamma is equal to 1.4, where R is equal to ideal gas constant, Cp is specific heat at a constant pressure, Cv is the specific heat at a constant volume, and the K or gamma is equal to specific heat ratio, that is a value fixed 1.4 एज अ स्टैंडर्ड वैल्यू. कभी यदि आपको क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं दी रहती हैं तो इन वैल्यूज को आपको स्टैंडर्ड मान के लेके चलना है. तो ये आइस इंजन जैसे कि हमने मॉर्निंग की क्लास में डिस्कस किया था आपके साथ में कि आइस इंजन जो कि कई तरीके से हो सकता है, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, जनरेटर, ट्रक, किसी भी फॉर्म में हो सकता है जहाँ की कंबशन इनसाइड ऑफ इंजन हो रहा है, वो इंजन आपका इंटरनल कंबशन इंजन या आइस इंजन के नाम से जाना जाता है. तो क्या एजम्पशंस लेके चलते हैं, क्या लेके चलेंगे, किस तरीके से बताया जाएगा कि ये आइस इंजन है या उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें बातें रखी जाएंगी जिससे कि हम बता सकें कि इसकी वर्किंग जो है इस तरीके से प्रोसीड होगी. तो फर्स्ट इज द ऑल द प्रोसेस दैट मेक्स अप द साइकिल आर द इंटरनली रिवर्सिबल. जितनी भी प्रोसेस वहां पे हो रही है, एडियाबेटिक हो, कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कांस्टेंट प्रेशर हो, इट विल डन एट ए रिवर्सिबल मैनर. एयर कंटिन्यूसली सर्कुलेट इन द क्लोज लूप. जो एयर है पूरे साइकिल के अंदर कंटिन्यूसली मूव कर रही है एंड बिहेविंग एज अ आइडियल गैस की तरह बिहेव होता है एयर का. एंड द कंबशन प्रोसेस इज रिप्लेस बाई एन हीट एडिशन प्रोसेस फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेज. कंबशन की जो प्रोसेस हो रही है एक हीट एडिशन की प्रोसेस है जो कि एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा हो रही है. दैट इज अ कंबशन चैम्बर. एयर इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड सोर्स and the fuel mix up with the air from the carburetor side and going into the inside of the engine cylinder. After that, the working when the complete is after the expansion, the combustion product in the form of the exhaust gases which is escaping in the silencer or the other devices exhaust stroke through the atmosphere. And this is the heating section where the diesel cycle air it is coming from the outside and it is heating done by the external sources by the compression process, and air is coming out from this section for the combustion process. Heat reaction process that restore the working flow to the initial state, replace the exhaust process. तो जैसा कि आपने सुना है, बीएमई में भी आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कि इंजन होता था आइस इंजन. आइस इंजन के केस में आपकी 4 प्रोसेस होती थी, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट. तो हीट रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो एग्जॉस्ट की प्रोसेस कहलाती है, और एग्जॉस्ट के प्रोसेस में आपको पता है स्मोक बाहर जाता है, एटमॉस्फेयर में आता है, और उस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस वहाँ पे हम मान के चलते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, कोई भी केमिकल रिएक्शन इंजन के अंदर नहीं हो रही है.
जो भी प्रोसेस है वो आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू हम एज्यूम करके चल रहे हैं होती हैं, और वो आपकी गैसेस एग्जॉस्टेड होती हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस से। तो टर्मिनोलॉजी कौन कौन से इस्तेमाल की जाती है, यहाँ पे आप देखेंगे टर्मिनोलॉजी में TDC लिखा हुआ है कि जब पिस्टन की ऊपर वाली कंडीशन रहती है, दिस इज द सिलेंडर पिस्टन मैकेनिज्म इन विच द इनलेट वाल्व, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व इज रिप्रेजेंटेड, जहाँ पे कि इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को दिखाया गया है। दिस इज द बोर, दिस इज सिलेंडर डायमीटर and the stroke length when the piston is moving from one dead center to the another dead center, that is called the one stroke length. So top dead center when the piston is reached at the top conditions, that is called a TDC, and the bottom dead center where the piston is at the extreme low conditions, जब पिस्टन नीचे साइड पे रहता है तो उसे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं, जब पिस्टन ऊपर साइड पे रहता है तो उसे टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। लेकिन कभी भी पिस्टन आपने देखा होगा या आपने कई सारे ऐड भी आते हैं टीवी में, तो सर्वो प्राइड के ऐड में यदि आपने कभी ध्यान दिया हो तो कभी भी पिस्टन जो है सिलेंडर हेड के साथ में टच नहीं करता है। या प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कभी यदि गाड़ी की सर्विसिंग कराने गए होंगे तो आपने यदि इंजन खुला हुआ देखा होगा तो वहां पे कभी भी पिस्टन आपका सिलेंडर हेड से टच नहीं करता है, बिकॉज ऑफ सम क्लियरेंस should be needed to required to maintain. If clearance is not maintained, यदि क्लियरेंस को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो चूंकि पिस्टन एक बार ऊपर नीचे TDC टू BDC या BDC टू TDC मूव नहीं करता है, उसे बार बार मूव करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन पे यदि क्लियरेंस वॉल्यूम को जीरो कर देंगे तो उस केस में हो सकता है वो सिलेंडर हेड को डैमेज कर दें। तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ क्लियरेंस मेंटेन किया जाता है जिसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से भी जानते हैं। तो सम ऑफ द वॉल्यूम विच इज occupied during the clearance space, that is called a clearance volume, and after that कि clearance के बाद यदि piston TDC to BDC मूव कर रहा है और मिक्सचर यदि अंदर आ रहा है तो that is called a displacement volume, and the compression ratio, the total volume जो आपका रहता है वो आपका total volume जो है क्लियरेंस वॉल्यूम और बोलना चाहिए स्विफ्ट वॉल्यूम के एडिशन के बराबर है टोटल वॉल्यूम, और जो आपका स्विफ्ट वॉल्यूम है या बोलना चाहिए क्लियरेंस वॉल्यूम है तो 1 प्लस वी एस बाई वी सी, दैट इज कॉल्ड अ कंप्रेशन रेशियो, और इट इज कॉल्ड अ टोटल वॉल्यूम अपॉन द क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड अ कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो की जो डेफिनेशन है वो इस हिसाब से बताई गई है कि जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में मिक्सचर को अंदर अपने अंदर लेता है तो उस टाइम पे वॉल्यूम कम रहता है, लेकिन जब BDC से TDC की ओर ट्रेवल करता है, जब BDC से TDC की ओर ट्रेवल करेगा तो कंप्रेस होगा मिक्सचर, मिक्सचर के कंप्रेस होने से उसका वॉल्यूम कम होगा और प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो दैट इज द रेशियो that is called a volume at the beginning of the compression, it is more than the volume at the end of the compression, that is the called a, if the volume at the beginning of compression that is called a V1 and the volume at the end of the compression that is V2, that is the compression ratio defined by the mathematically, that is V1 by V2. Similarly, in the case of the mean effective pressure, because of piston is going on the in terms of the various number of process, suction, compression, expansion and the exhaust, during all the process pressure value will be changes। सभी प्रोसेस में आप देखेंगे कि जो प्रेशर की वैल्यू है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रही है, तो उसकी एक मीन जो वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है, उसको हम लेके चलते हैं और उसके लिए इंडिकेटर डायग्राम का यूज़ किया जाता है ताकि हम मीन इफेक्टिव प्रेशर को कैलकुलेट कर सकें, एरिया उसका इंडिकेटर डायग्राम पर देख सकें कितना इंडिकेटर डायग्राम का एरिया है, उसके बेस पे हम मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो मैथमेटिकली फॉर्म में देखेंगे तो जितना वर्क डन हुआ साइकिल के अंदर और जितना भी स्विफ्ट वॉल्यूम था उन दोनों का रेशियो जो रहता है मीन इफेक्टिव प्रेशर के नाम से जाना जाता है। तो कंप्रेशन रेशियो जैसा कि हमने बात की थी कि BDC में कितना वॉल्यूम है, स्टार्टिंग ऑफ वॉल्यूम वो ज़्यादा रहता है और कम वाला वॉल्यूम चूँकि कंप्रेस हो जाएगी तो कंप्रेस होने के बाद वॉल्यूम जो रहेगा मिक्सचर का कम हो जाएगा। तो मिनिमम वॉल्यूम आपका BDC पे रहेगा और मैक्सिमम वॉल्यूम जो रहेगा वो BDC पे रहेगा। तो कंप्रेशन रेशियो डिफाइंड बाय द मैक्सिमम वॉल्यूम अपॉन द मिनिमम वॉल्यूम and the mean effective pressure, that is the pressure that it is operated on the piston during the entire power stroke would produce the same amount of the net work done as that of the produced during the actual cycle। तो mean effective pressure जो रहेगा वो net work done upon जो आपका टोटल वॉल्यूम का डिफरेंस है V1 माइनस ऑफ V2 वो रहेगा। तो यहाँ पे वो चीज लिखी हुई है V मैक्सिमम माइनस ऑफ द V मिनिमम, तो V मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड अ V1 और V मिनिमम दैट इज कॉल्ड अ V2।
तो वी मिनिमम आपको जो मिलेगा वो अंदर मिलेगा टीडीसी कंडीशन पे, जो कि टॉप मोस्ट कंडीशन रहेगी जब कंप्रेशन करेंगे, और V1 जो कि मैक्सिमम आपका वॉल्यूम वो यहाँ पे मिलेगा। तो कंप्रेशन कभी भी बाहर से जब पिस्टन अंदर की तरफ मूव करता है तो उस टाइम पे कंप्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है इन द केस ऑफ द horizontal cylinder piston. Okay, in the case of the vertical cylinder piston mechanism, when the volume is becomes low at the BDC condition, and after the compression volume will becomes the high at the TDC condition. Otto cycle, that is the Otto cycle represented in the diagram for the spark ignition engines. So यहाँ पे आपका कंप्रेशन है दिखाया जा रहा है, पावर है, एक्सपांसन है, एग्जॉस्ट है, एंड द इनटेक स्ट्रोक्स है। तो ये सारी चीजें दिखाई गई हैं इस डायग्राम में। ऑटो साइकिल के केस में, तो ऑटो साइकिल के केस में चार जो प्रोसेस आपकी हो रही हैं, आई थिंक इट इज ऑलरेडी डिस्कस इन द BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इफ यू रीड 4 प्रोसेस, 1 to 2 दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल होती है और पेट्रोल इंजन की गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है। तो उस साइकिल के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जब बात करेंगे तो जो फ्रेश फ्यूल एयर चार्ज का मिक्सचर है वो सक्शन होके कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के लिए यहाँ पे जाएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के थ्रू कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, और चूंकि जैसे ही ऊपर पहुंचेगा यहाँ पे स्पार्क प्लग मिलेगा, स्पार्किंग करेगा, स्पार्किंग करने से जो गैसेस बनेंगी उनके फोर्स से पिस्टन को मोशन मिलेगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर ट्रेवल करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन की प्रोसेस हो रही है। और आफ्टर दैट व्हेन द एक्सपांशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड 3 to 4 दैट इज द एक्सपांशन प्रोसेस कंप्लीटेड बाय द आइसेंट्रोपिकली मैनर जो आप देख रहे हैं। And after that, when the expansion process is completed, there will be a chances of the open of the exhaust stroke, and when the exhaust stroke is open, then exhaust gases will be escape out from the exhaust stroke valve to the atmosphere, and this process which will be held during the constant volume process, that is represented in the diagram, PV diagram 4 to 1, in which the वॉल्यूम इज रिमेनिंग द कांस्टेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो 1 to 2 दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 3 to 4 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम heat rejection process, 2 to 3 that is the heat supply process. So heat supply it is taking by the spark plug. When the piston is reaching at this point, the spark plug is working, there will be a chances of continuously heating is done and the sparking is continuously done at this point. And after that, when the heat supply is done by the external sources, there will be chances of the expansion of gases which will be held during this process. And after that, when the gases is formed during the expansion during the combustion process, there is a forces which pushes the piston from the going to piston from TDC to BDC conditions. So this is the ideal diagram, PV diagram. This is the ideal diagram in which above this diagram ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअल डायग्राम है। इस केस में जनरली जो हम मान के चलते हैं कि कंप्रेशन आपका टीडीसी पे कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो टीडीसी के पहले ही कंप्लीट हो जाता है, ऐसा हम मान के चलते हैं एक्चुअल साइकिल के केस में। और आफ्टर दैट कि आपको यहाँ पे स्पार्क प्लग मिल जाना चाहिए स्पार्किंग करने के लिए, लेकिन स्पार्क प्लग हो सकता है थोड़ा सा लेट मिले, या हो सकता है अर्लियर आपको स्पार्क प्लग मिल जाए ताकि वहाँ पे बर्निंग की प्रोसेस जल्दी चालू कर सकें। तो ये बर्निंग की प्रोसेस पहले से ही चालू हो गई है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। पावर स्ट्रोक के केस में स्पार्क प्लग थोड़ा सा और ऊपर मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पाया है, थोड़ा सा लेट मिला है उसको, या बोलना चाहिए जल्दी मिल गया है। उस केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पावर स्ट्रोक जो है पहले से स्टार्ट हो चुका है और पावर स्ट्रोक कंटिन्यूसली चल रहा है। एग्जॉस्ट बोलना चाहिए कि वॉल्व खुलने के बाद भी चलता रह रहा है। तो उस केस में यहाँ पे एक चांसेस रहता है कि जो फ्रेश चार्ज है वो गैसेस के साथ में मिक्सअप कर जाता है। एंड आफ्टर दैट कि जैसे एक्सपांसन की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं व्हेन द पिस्टन इज गोइंग फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी, तो यहाँ पे एंड ऑफ कंबशन स्पार्क प्लग ने पहले स्पार्किंग करनी बंद कर दी और उसके बाद जो एक्सपांसन की प्रोसेस है स्टार्ट यहाँ पे होनी चाहिए थी लेकिन पहले से स्टार्ट हो गई है, और एक्सपांसन की प्रोसेस कंटिन्यू यहाँ तक चलनी चाहिए था लेकिन यहाँ तक ही आपकी पहले ही खत्म हो चुकी है। तो एक्सपांसन विल बी फिनिश अप टू द बिलो द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस स्टार्टेड। So after that, when the constant volume process is going to held, there will be chances of mixture to be gases will be escaping
through the exhaust valve to the atmosphere. So this is the process, exhaust process, in which the gases will be escaping to the atmosphere. In the actual case, there will be chances of continuously moving of gases, and the valve is not totally closed at the time. सक्शन और जो एग्जॉस्ट वाल्व हैं ये ना तो टाइमली खुल पाते हैं एक्चुअल केस में, ना ही टाइमली बंद हो पाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की प्रोसेस होती हैं. तो इनटेक वाल्व ओपन, इट इज बिफोर ऑफ दैट, एंड एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज आफ्टर दैट ऑफ वर्किंग. So this is the difference between of the actual and the ideal cycle. Actual cycle is different from the ideal cycle due to the various manner, because of the some heat losses will be take place in the all the process. There is a no actual ideal process. In a real process, there is a no any process of the constant volume, no process of the constant adiabatic process or constant entropy process, constant pressure process. There is a no process. There is a no ideal process because of the real cycle और ideal cycle में ये difference है कि real cycle में कोई भी process को हम constantly assume नहीं कर पाते हैं. तो descriptions in the Otto cycle for the process form 1 to 2 isentropic compression already discussed in this diagram. 1 to 2 is the isentropic compression, 2 to 3 is the constant volume heat addition, 3 to 4 is the constant बोलना चाहिए isentropic process जहाँ की expansion हो रहा है, and 4 to 1 that is the constant volume heat rejection. Related formula based on the basic thermodynamics, isentropic compression 1 to 2, it is represented in this form. So fundamental formulas which can be replied in this case, P1 by P2 is equal to V2 by V1 to the power of n is equal to T1 by T2 power n upon n minus 1. 2 to 3, that is the constant volume heat additions. Heat is supplying in this manner, MCV T3 minus of T2. And the isentropic expansion 3 to 4 process is represented by this form. It is follow the adiabatically PVT relationship. It is represented in this form. That is P1 by P2 is equal to V2 by V1 power n is equal to T1 by T2 is equal to power n upon n minus 1. And the constant volume heat reaction, when the heat is coming out through the exhaust gases, जैसे ही exhaust gases बाहर आती हैं तो अपने साथ में heat को ले जाती हैं. तो जो heat जा रही है gases के साथ में, it is equal to mCv T4 minus of T1. The thermal efficiency of the Otto cycle, that is the derivations, because of the we know that about the thermal efficiency, it is the net work done upon the heat supply, and the net work done, it is the total heat कितनी आपकी वहां पे total heat बोलना चाहिए heat transfer हुआ. तो heat transfer it is depending on the कितनी heat अंदर आई और कितनी heat बाहर गई. So heat inside, it is coming from the outside, and heat going to the outside from the gases. So Q in minus of the Q out upon the Q in, 1 minus of the Q out upon the Q in. Apply the first law, closed system to a process 2 to 3, V is equal to constant, and the net heat transfer minus of the W net work transfer is equal to delta U 2 to 3. तो net work transfer is equal to, जितना भी आप देखेंगे कि जो वर्क ट्रांसफर है वो आपका बोलना चाहिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में जीरो था या जीरो है. ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट का इस्तेमाल करेंगे तो उस बेस पे यहाँ पे जो नेट वर्क डन आपका या नेट हीट ट्रांसफर रहेगा, दैट इज द MCV T3 minus of T2. अप्लाई द फर्स्ट लॉ क्लोज टू ए प्रोसेस 4 to 1 V is equal to constant. तो इस केस में जो आपका हीट ट्रांसफर रहेगा वो इस हिसाब से रहेगा. तो जो 4 to 1 है जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो दो जो जहां पे भी आप देख रहे हैं इस डायग्राम में हम आपको दिखा देते हैं, वॉल्यूम 2 to 3 कांस्टेंट है, यहाँ वर्क डन जीरो रहेगा. 4 to 1 में आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे वर्क डन जीरो रहेगा. उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, आप जो देखेंगे उसी चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया. 2 to 3 वर्क डन जीरो, और आपकी हीट सप्लाई MCV T3 minus of T2 ऑलरेडी डिस्कस. एंड द 4 to 1 चूंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है 4 to 1, तो यहाँ पे भी आपका क्या बोलते हैं वर्क डन जीरो रहेगा. और जो आपका हीट रिएक्शन है Q out, दैट इज ऑलरेडी डिस्कस in the previous slide, MCV T4 minus of T1. It follow the constant volume process. And similarly, in the 2 to 3, where the heat is supplying to taking place, already discussed, heat supply MCV T3 minus of T2.
Okay, so there is a chances where the all type of the process is going on, and the thermal efficiency formula bill becomes 1 minus of the q out upon the q in, that is 1 minus of mcb t4 minus of t1 upon mcb t3 minus of t2. Already putting this formula in the thermal efficiency formula. So 1 minus of T4 minus of T1 upon T3 minus of T2. Because of the MCB in the both side, up and down side will be cancelled. Then the formula will be reduced 1 minus of T4 by T1 upon T3 minus of T2. And the T1 is coming out the top side and the T2 is coming out from the lower side. Then equation will be reduced in this form. T2 by T1 is equal to V1 by V2 to the power of K minus of 1, already called as a gamma minus 1. And already T3 is by T4 is equal to V4 by V3 to the power of K minus 1, already known as gamma minus 1. It is coming from the isentropic rule regulations. Isentropic rule regulation क्या कहता है कि यदि आपके कंप्रेशन की प्रोसेस हो रही है तो कंप्रेशन की प्रोसेस में जो पीवीटी रिलेशनशिप है वो आप किस तरीके से फॉलो होते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू अपॉन लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रहेगा? 2 पॉइंट पे रहेगा। जब कंप्रेशन कंप्लीट करेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से हाईएस्ट जो वॉल्यूम है वो कहाँ पे रहेगा? 1 पे रहेगा। तो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप मैंने पहली यूनिट में आपको डिस्कस किया था, उसी चीज को लिखा हुआ है। इसी तरह 3 to 4 प्रोसेस में आप जाएंगे तो वो भी चीज यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी। तो T3 by T4 हाईएस्ट टेम्परेचर कहाँ पे रहेगा? तीसरे पॉइंट पे रहेगा। जब इसका टीएस डायग्राम आप देखेंगे तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपको तीसरे पॉइंट पे मिलेगा, क्योंकि वहां पे बर्निंग की प्रोसेस हुई है, इस कारण से हाईएस्ट टेम्परेचर वहां पे रहेगा। तो T3 by T4 is equal to V4 by V3 to the power of gamma minus 1। तो वॉल्यूम यदि कांस्टेंट है, V3 is equal to V2 and V4 is equal to V1, then it makes the temperature ratio T4 by T1 is equal to T3 by T2। The Otto cycle efficiency becomes, तो थर्मल इफिशिएंसी जो रहती है ऑटो साइकिल की 1 माइनस ऑफ T1 by T2। T1 is the lowest temperature and T2 is the highest temperature। तो thermal efficiency it is depending on the two parameters, the one compression ratio and the value of the gamma value will be fixed 1.4, and the compression ratio value that is depending on the how much amount of the heat will be added during the cycle। तो there will be a chances of, this is the graph at which time कि शुरुआत में आप देख रहे हैं कि ग्राफ में जैसे ही कंप्रेशन रेशियो आप बढ़ाते आ रहे हैं वैसी इफिशिएंसी बढ़ रही है। इफिशिएंसी इन द परसेंटेज फॉर्म, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं थर्मल इफिशिएंसी वर्सेस द कंप्रेशन रेशियो है, और जैसे ही आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे वैसे ही थर्मल इफिशिएंसी बढ़ती चली आएगी। बट सर्टेन टाइम द एफिशिएंसी विल रिमेन्स द कांस्टेंट। हाउ इट इज पॉसिबल कि आपने बोला कि कंप्रेशन रेशियो बढ़ाया तो थर्मल एफिशिएंसी बढ़ गई, बट व्हाट इज द चांस कि थर्मल एफिशिएंसी विल रिमेनिंग द कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम? कैसे कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो की जो लिमिट है आप करके देखिएगा, 4 वैल्यू पुट करते हैं और गामा की वैल्यू 1.4 पुट करते हैं यहाँ पे। सपोज कंप्रेशन रेशियो इज 4, गामा वैल्यू इज कांस्टेंट 1.4, तो देखिए थर्मल एफिशिएंसी कितनी आती है। 6 पे रखिए, फिर देखिए कितनी आती है। 8 पे रखिए, फिर कितनी आती है। फिर कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू 10 रखिए तो कितनी आती है। 12 रखेंगे कितनी आती है, 14 रखेंगे कितनी आती है। तो इस तरह जब आप करते रहेंगे कंटिन्यूसली तो आपको पता चलेगा कि एफिशिएंसी जो है किसी लेवल पे आके सर्टेन कांस्टेंट हो रही है। तो जरूरी नहीं कि हम एफिशिएंसी को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहें। जरूरी क्या होता है यहाँ पे, ड्यू टू द मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो उस चीज को हम उतना हायर साइड पे नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वहां पे जो पार्ट्स हैं जिससे कि इंजन डिजाइन हुआ है वो जल जाएंगे, इंजन को भी डैमेज कर सकते हैं। तो दिस इज द कंडीशन कि ऑटो साइकिल एफिशिएंसी एक सर्टेन लेवल तक ही फिक्स रखनी चाहिए, ज्यादा अपन हाई नहीं रख सकते उसको। तो दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसमें कि आप देख रहे हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। ए ऑटो साइकिल हैविंग अ कंप्रेशन रेशियो 9:1 यूजेस एयर एज अ वर्किंग फ्लूइड, एयर को वर्किंग फ्लूइड के रूप में इस्तेमाल किया रहा है जैसा कि हमने आपसे बताया। P1 जो प्रेशर है वो 95 किलो पास्कल है। T1 जो टेम्परेचर है 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। V1 जो है 3.8 लीटर है। ड्यूरिंग द हीट एडिशन प्रोसेस 7.5 किलो जूल ऑफ हीट आर एडेड। डिटरमाइन द ऑल द temperature, pressure and the thermal efficiency, the back work ratio and the mean effective
प्रेशर। तो आपको निकालना क्या क्या है, सभी पॉइंट पे टेम्परेचर निकालने हैं, जितने भी पॉइंट हैं, ये 1 2 3 4 पॉइंट है, यदि जिस भी पॉइंट पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी है वो निकालना है। सभी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू निकालनी है यदि नहीं दी है, थर्मल एफिशिएंसी निकालनी है यदि नहीं दी है, और बैक वर्क रेशियो ये निकालना है आपको, और मीन इफेक्टिव प्रेशर की वैल्यू निकालनी है आपको। तो डेटा आपके पास जो गिवन है, इनिशियल वैल्यू दी हुई है, तो इनिशियल वैल्यू को हरदम हम इनिशियल वैल्यू को हरदम हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वैल्यू को 2 से लेते हैं। तो V1 बाई V2 दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन रेशियो, जो आप देख रहे हैं ये 9 रहता है, ये आपका दिया हुआ है प्रॉब्लम में। P1 जो है प्रेशर जो है वो 95 किलो पास्कल है, ये आपका दिया हुआ है, और T1 टेम्परेचर आपका 17 है, तो 17 प्लस 273 करेंगे तो 290 केल्विन हो जाएगा। P1 जो प्रेशर है आपका 95 किलो पास्कल, जो ऑलरेडी हमने बता दिया है। जो V1 है वो आपका 3.8 लीटर है, ठीक है ना। तो अब आपको हर एक पॉइंट पे निकालनी है, तो एक एक प्रोसेस को कंसीडर करते आइए, और हर एक पॉइंट पे आपको टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू मिलती चली आएगी। तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 पावर K माइनस 1, यानी गामा माइनस 1 करेंगे तो आपको T2 की वैल्यू नजर आ जाएगी, यहाँ पे निकाल के आ जाएगी, क्योंकि आपके पास T1 पता है, V1 बाई V2 कंप्रेशन रेशियो पता है, गामा की वैल्यू 1.4 आपको लेनी है, K की वैल्यू 1.4 लेनी है। इसी तरीके से P2 बाई P1 इज इक्वल टू V1 बाई V2 करेंगे टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 या K माइनस 1, तो P2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये आपकी 2059 किलो पास्कल निकल के आ जाएगी। प्रोसेस 223, जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे जब आप फर्स्ट लॉ लगाएंगे तो उससे आपको पता है कि फर्स्ट लॉ लगाते हैं और यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 है, तो जो भी हीट ट्रांसफर है वो mcb T3 माइनस ऑफ T2 के फॉर्म में है, ये आपका दिया हुआ है, हीट सप्लाई दी हुई थी आपकी, तो उससे आप निकाल सकते हैं वैल्यूज। तो जो वैल्यूज अननोन है वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपके पास V1 नहीं दिया है, V1 निकालना है, तो V1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्योंकि आपके पास P1 पता है, T1 पता है, R की वैल्यू पता है, तो उससे आप V1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरीके से बाकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। प्रोसेस 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन लगा के T4 बाई T3 इज इक्वल टू V3 बाई V4 टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1, तो T4 इज इक्वल टू T3 जब करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1288.8 केल्विन, और P3 की जो वैल्यू है वो 9.15 मेगा पास्कल निकल के आएगी, और T3 की वैल्यू हमने चूंकि हीट ट्रांसफर वहां पे दिया हुआ था, उसको जब पुटअप करेंगे तो उससे वैल्यू निकल के आपकी T3 की आ जाएगी। फिर P4 की वैल्यू निकालने के लिए P4 बाई P3 इज इक्वल टू V3 बाई V4 करेंगे टू द पावर ऑफ गामा, तो P4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी 422 किलो पास्कल। इसी तरीके से प्रोसेस 4 to 1 करेंगे तो हीट रिएक्शन निकल के आ जाएगी 717.1 किलो जूल पर केजी। तो जो नेटवर्क डन रहेगा दैट इज द हीट सप्लाई माइनस ऑफ द हीट रिएक्शन। तो हीट सप्लाई Q2 to 3 है, और हीट रिएक्शन जो है 4 to 1 है, तो 1009.6 किलो जूल पर केजी डब्ल्यू नेट की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और दिस इज द थर्मल एफिशिएंसी डब्ल्यू नेट अपॉन द हीट सप्लाई 0.585, 58.5% आ जाएगी थर्मल एफिशिएंसी। ये ऑटो साइकिल का एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, इसमें मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फार्मूला है वो लगा दिए गए हैं, दैट इज द डब्ल्यू नेट अपॉन द वी मैक्सिमम माइनस ऑफ द वी मिनिमम। तो V1 आपने कैलकुलेट किया था, दैट इज द 1 माइनस ऑफ V1 को बाहर जब निकालेंगे तो 1 माइनस ऑफ V2 बाई V1 मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द कंप्रेशन रेशियो। इसको जब पुटअप करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी 1298 किलो पास्कल। और इसी तरीके से बैक वर्क रेशियो दैट इज रेशियो ऑफ द कंप्रेशन अपॉन द एक्सपांशन रेशियो, and it is equal to the CVT2 minus of T1 upon CVT3 minus of T4, तो 22.5% निकल के आएगा आपका बैक वर्क रेशियो। ओके, ये चीजें हुई आपकी, ये कुछ सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम है, इनके आंसर लिखे हुए हैं, तो ये मैं आपको देता हूँ करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, और कहीं पे यदि नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे नहीं निकल के आ रहा है, तो आंसर बताइएगा। ये आपको जो लाइन दिख रही है वाली कलर पे, ये इनके आंसर लिखे हुए हैं, और ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, सेकंड क्वेश्चन के लिए है।
So this is the today lecture.